Very hearty good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. So I hope most of the participants might be enjoying the workshop. As I am seeing that within 5 minutes, 100 participants are already joined. So that reflects that they are really enjoying and getting good response from the teacher, we can say. I too hope, sir. So, sir. Yeah. I think, sir, we can start with the doubts. If anybody has doubts, we can start now, because in the meantime, other student can join also. Yeah, you told yesterday that 15 minutes you can keep for the doubts and then you can start the session. And Yes, again, at the end, 15 minutes for the doubts. So that will, yeah. Okay. So, I am starting, sir. So this, I have one doubt. Yesterday, Yeah, I sir. also tried Tinkercad Okay, sir. Okay, and great. I draw that Gina diode circuit. Mhm. So while selecting the components, whether it will reflect the range you are going to have in the power supply, or like if you select a power supply, so we don't know whether it is 5 volt or 30 volt or 20 volt, or it is in the volt, millivolt, or in microvolt. So whether it is possible or it is default. You are talking about power supply, right, sir? No, I think you got my question. I think your voice is Yeah, breaking, power sir. supply, if you select as a component. Yeah. So, sir, in power So- supply, there is option that we can change voltage. No, There's a knob. voltage, but it is not showing that whether it is in the volt or it is in the millivolt or in the microvolt. Okay, sir. So So it's yeah, yeah. it can change, but unit we don't know, means what is it is reflecting. Correct. Whether it is possible or it is default. So in power supply, they only have volt range. But if voltage is too less, then multimeter automatically changes its value from volt to millivolt. It's like that. So it's auto adjusts itself. Okay. Yes, sir. Thank you. Thanks, sir. So my circuit worked completely as per simulation, and there were no mistake. Some great, students sir. send me also that diagram. So they have put the zener in the opposite direction. Mhm. So I think the mistake they did. Right, sir. Right. Yeah, so you can continue with your doubt session. You can continue. Okay, sir. Welcome to all of you again, participants. I hope you are enjoying this session और आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल रही है. आज हम, जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन बोला था कि we will keep first 15 minutes for doubts. So if there are any doubts, because 120 participants have joined, we'll wait for say 5 more minutes. 160 जब join हो जाएंगे around, so हम अपना आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे. जिनको भी डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा सबको जवाब देने की. सो गीतांजलि कोरी पूछ रहे हैं, सर आई हैव ट्राइड द सर्किट ऑफ आरजीबी एलईडी ग्लोइंग बाय टॉगल बटन ऑन द ब्रेडबोर्ड बट इट्स नॉट वर्किंग. सो इफ यू हैव दिस सर्किट ऑन टिंकरकैड then please show me that circuit. Okay, so I'll show you that circuit, no problem. Okay, so this is the circuit. I hope everybody able to. Oh no, again.
Let me upload it once more. Great. So, Gitanjali, hope you can see it. I think the problem that you must be facing is with breadboard. I think you are new to breadboard, so that's why you are not able to understand how the connections are done. So I'll just, you can see this circuit. Maybe you can figure out. I'll just explain in briefly how is this circuit is created. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बैटरी है. The battery has 9 volt supply. 9 volt supply is connected भोपाल to वाला the. साइट है ना, कल चेक किया रात को, कोई उसमें सब बोले से सर्टिफिकेट नहीं आया अभी हम लोग को. उसमें जैसे खोलोगे तो पहले डिस्कशन वाला पेज आता है ना. ऋत्विक, आई थिंक आपका माइक म्यूट नहीं है. ऋत्विक, आपका माइक म्यूट नहीं है, प्लीज अपने माइक को म्यूट करें. ओके, सो यहाँ पे जो पॉजिटिव सप्लाई है वो हमने पॉजिटिव साइड को कनेक्ट किया हुआ है. Excuse me, sir. यस, हु इज दिस? Sir, it's Gitanjali. या, प्लीज टेल मी. Sir, I have done it with push button, but sir, when I was trying it with slide switch, then it was not working. So that I was asking. Slide I switch. mistyped it as toggle button. Okay, so I'll just do one with toggle button. Maybe then you can understand how it works. Okay, Okay. sir. I just remove this and here. ओके, सो टॉगल बटन को आपको इस तरीके से यूज करना है. ठीक है, so let's see it's working fine, right? पुश बटन से अगर आपका हो गया है और टॉगल बटन से प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आप छोटी सी कुछ कनेक्शन मिस्टेक जैसे यहाँ कर रहे हैं. आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ. गीतांजलि? Yes, sir, it's clear now. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. So, Parvati is asking, Rahul is having problem with Zener diode. Rahul, please type in chat box what problem you are facing. Simple saying that I have problem with Zener diode doesn't, मतलब मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या doubt है. Parvati is asking, sir, I also have problem with power supply and oscilloscope. What problem are you facing? Parvati, please वो जो problem है वो type कीजिए. I understand some problem है, लेकिन क्या problem आ रही है आपको? मयंक, पीपीटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा 3-4 दिन के बाद, जिसमें सारी जो चीजों का है मैं आपको कुछ शॉर्ट में दूंगा. बट डॉक्यूमेंट में ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जो सर्किट हम बना रहे हैं उसके डायरेक्ट स्नैपशॉट आपको मिलेंगे. ठीक है, सर्किट डायग्राम्स रहेंगे, कुछ चीजें रहेंगी जो आपको सेल्फ लर्निंग में हेल्प करेगी, राइट? और जैसे अभी जो हम एक्सपेरिमेंट्स जो कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन नहीं है. मैं हर रोज एक्सपेरिमेंट चेंज कर रहा हूँ बेस्ड ऑन फीडबैक, तो उसका कोई प्रेजेंटेशन मेरे पास नहीं है. ओके, सारा इज आस्किंग, ही सेड रैंडम लोगों से वीडियो कॉल करना है. व्हाट इज दिस? ओके, Sarah, this is something that you can privately message that particular participant. Rishabh Kumar, sir, my oscilloscope circuit, the output is coming as square wave. Is it correct? If not, please show me the circuit once again. तो oscilloscope से आपके जो है स्क्वायर वेव नहीं आना चाहिए अगर आप कैपेसिटर वाला सर्किट इंप्लीमेंट कर रहे थे. ठीक है, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ. जो कैपेसिटर वाला हमने किया था, आपका स्क्वायर वेव नहीं आना चाहिए इसमें. I'll just show you what is that. राहुल कुमार, आपके जिनर
को आपने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। आई विल शो यू द सर्किट वंस मोर, बिकॉज डिनर वाले सर्किट में ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। आई थिंक आप उसके कनेक्शन सही नहीं कर रहे होंगे। तो राहुल, आप जो है यहाँ पे देयर इज ऑप्शन, चैट बॉक्स में एक ऑप्शन है फाइल ऑप्शन, उसमें आप अपना जो भी बना रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं, राइट? तो मैं उसको स्क्रीनशॉट को देख के जेपीजी फॉर्म में मैं देख लूंगा कि आप क्या वायरिंग में मिस्टेक कर रहे हैं। तो जिनर का वर्किंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन सर्किट बहुत सिंपल है। ओके सुयश, आप फोटो रजिस्टर में प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो फोटो रजिस्टर का आज हम फिर से दिखने वाले हैं, because today we will be covering sensors and actuators, so maybe we can again see that. Again Suyesh, you can send the screenshot in the chat box, maybe I will able to see कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि वो भी सर्किट बहुत सिंपल है, मैं एक बार फिर से आपको शो कर दूंगा। तो पार्वती, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने सर्किट बनाया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप फिर इसको बाद में ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो एनी मोर डाउट्स? और डाउट्स है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक 153 पार्टिसिपेंट्स एंड ज्वाइन, तो अगर कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Speed controlling of DC motor by light sensor can be done practically by NPN transistor, मयंक भार्गव पूछ रहे हैं। तो पॉसिबल है, बट डायरेक्टली कहना कि आप उसका जो सर्किट होगा दैट वोंट बी दैट सिंपल, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस। अगर आप बेस करंट को अगर आप चेंज करेंगे तो आपका कलेक्टर करंट चेंज होगा, राइट? बिकॉज कलेक्टर करंट इज IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो कलेक्टर पे अगर आप डीसी मोटर लगाते हैं और बेस करंट को लाइट सेंसर से प्रॉपरली चेंज करते हैं तो यस वी कैन कंट्रोल दैट। However, those circuit में resistance values and all those values are very critical because transistor is very sensitive to current changes, right? तो possible है, बिल्कुल possible है, but directly Tinkercad में आपको बहुत ज़्यादा experimenting करनी पड़ेगी, resistance की value के साथ, बहुत सारी value के साथ काम करना पड़ेगा। Great. So I think now we can move on to our today's session. Sir, will we be able to do some industrial work on IoT after webinar? Industrial projects हम definitely discuss करेंगे, but industrial projects are way difficult. वो बहुत ज़्यादा difficult होते हैं। आप एक 14 दिन के सेशन में industrial product नहीं बना सकते। Industrial product बनाने के लिए आपको सालों का experience चाहिए होता है। But मैं पूरा कोशिश करूँगा, हमारे कुछ industrial products हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, और जैसे एक RFID based attendance system हमने बनाया हुआ है for school students, तो उसका मैं एक डेमो वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और भी कुछ एग्जांपल्स रहेंगे, डेमो एग्जांपल्स हम बहुत सारे देखेंगे, बट ऑब्वियसली एक 14 दिन का सेशन बहुत छोटा टाइम होता है। इंडस्ट्रियल लेवल के लिए आपको कंटिन्यूअसली मतलब लगातार महीनों तक सर्किट्स पे काम करना होता है, एम्बेडेड सिस्टम पे काम करना होता है, तब जाके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनता है। विश्वेश, मैंने आपको आई थिंक ये क्वेश्चन आप बहुत बार बार पूछ रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। लाइक आई थिंक कल से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा, बट दिस इज नॉट कि आप बार बार ये सवाल पूछे कि सर प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट होगी, प्रोग्रामिंग कब स्टार्ट होगी, बिकॉज वी आर गोइंग विद आवर सेशंस, विल टेल यू। क्योंकि क्या होता है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कई लोग के डाउट्स आते हैं, तो 2 दिन का सेशन 3 दिन में एक्सटेंड होता है, सो आई कैन नॉट एक्जैक्टली टेल व्हेन वी विल स्टार्ट। So tomorrow's session probably we should start the programming, right? I request all the participants, please don't ask this question again कि सर हम programming कब start करेंगे। स्कंद तिवारी पूछ रहे हैं, सर SCADA is an example of IoT में yes and no both। अगर SCADA इंटरनेट से चल रहा है, ठीक है, there is an option in SCADA। SCADA कंप्यूटर से भी चलता है, मतलब आपके कंप्यूटर पे SCADA चल रहा है और कंप्यूटर से आप किसी PLC को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आप SCADA को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप भोपाल में बैठे हैं और किसी से रायपुर में कोई प्लांट है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेट से SCADA चल रहा है तो यस इट्स एन IoT, अगर वो इंटरनेट से नहीं चल रहा है तो IoT नहीं। अखिलेश इज आस्किंग, सर विल वी वर्क ऑन IoT क्लाउड? यस वी विल वर्क ऑन IoT क्लाउड, बट सिमुलेशंस के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
ठीक है, मतलब जो जैसे हम जब फिजिकल वर्कशॉप्स कराते थे आईओटी की, तो हम बच्चों से पूरा एक हार्डवेयर बनवाते थे जिसमें वो रियल टाइम में आईओटी क्लाउड पे अपना डेटा पोस्ट करते थे और ग्राफ प्लॉट्स आपको दिखते थे। बट चूंकि सिमुलेशंस हम कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार है, तो सिमुलेशन प्लेटफॉर्म ये सारे फीचर सपोर्ट नहीं करता, बट इसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल बताऊंगा। ओके, सो अगेन प्रिया इज आस्किंग सर प्रोग्रामिंग आप परसों से स्टार्ट करें। प्रिया, आपके टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेनिंग का टाइम टेबल एडजस्ट नहीं होगा, आपको अपना टाइमिंग खुद एडजस्ट हमारे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो डाउट क्लियरिंग सेशन में डाउट्स पूछे जाने चाहिए। ये क्वेश्चंस सही नहीं है कि सर हम क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग कब से स्टार्ट होगी, ये क्वेश्चन मत पूछिए, आप टेक्निकल डाउट्स पूछिए। एनी मोर क्वेश्चंस? राहुल कुमार इज आस्किंग कि सर हम स्क्रीनशॉट कैसे भेजें। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उस स्क्रीनशॉट को पेंट में आप पेस्ट कर सकते हैं, पेंट जो आपके कंप्यूटर पे होता है, फिर उसको जेपीजी फॉर्म में सेव कर दीजिए। जेपीजी फॉर्म में आप उसको सेव कर सकते हैं ऑन योर डेस्कटॉप, और ये फाइल ऑप्शन जो आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है उससे आप मुझे भेज सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। सो आज अभी कल जो हमने कंप्लीट किया वो था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का पर्पस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना नहीं था, टिंकर कैट को भी अच्छे से समझना था। कई लोगों को ब्रेडबोर्ड और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम सीधे सीधे थोड़े एडवांस लेवल से स्टार्ट करते हैं तो काफी लोगों को दिक्कत आती है। सो वी हैड अ वेरी गुड स्टार्ट। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में हम लोग स्लो रहेंगे और धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, तो आज से हम स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आज का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा तो है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज के आज हम उसको खत्म कर लें, नहीं होता है तो थोड़ा सा हम नेक्स्ट सेशन में इसको एक्सटेंड करेंगे। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट अगेन सब कुछ रूल्स जो मैंने बार बार बोला है। अपने माइक और को ध्यान में रखें, कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर डाउट में जो आप चैट बॉक्स में डाल रहे हैं कई बार मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाता हूँ, तो आप माइक को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे एक पार्टिसिपेंट ने पूछा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। बट ये है कि अच्छे डाउट पूछें, टेक्निकल डाउट पूछें, राइट, तो अच्छा रहेगा। तो अगेन देखिए, बेसिकली अगर आईओटी पे आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि नेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। क्योंकि आईओटी एक नया डोमेन है, हमें थोड़ा एक नई कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से कोर्स करिकुलम डेवलप होते हैं। हमारे जो कोर्स करिकुलम है, कॉलेजेस के जो कोर्स करिकुलम है, स्कूल्स के जो कोर्स करिकुलम है, उसके लिए बहुत बड़ी टीम बैठती है, प्रोफेसर्स, टीचर्स, इनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। फिर वो कोर्स कंटेंट बनाते हैं। कोर्स कंटेंट ऐसा होता है कि आपका एक चैप्टर होता है, चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो होता है। लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल डोमेन में काम करते हैं, तो इंडस्ट्रियल डोमेन में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है, और जब तेजी से चेंज होती है तो उसके मटेरियल्स नहीं मिलते। जैसे आईओटी पे आपको कोई ढंग की बुक नहीं मिलेगी, ढंग का चीज नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि आईओटी एक नया फील्ड है। बाकी जब इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और जो ये सारी जो चीजें हैं, ये इसके कोर्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगी, क्योंकि ये चीजें कई सालों पुरानी है। आज आप जो कोर्स करिकुलम पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट 20 साल पुराना है, क्योंकि जो लेटेस्ट चेंजेस होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि उस पर किताबें और सारी चीज लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन सब लेटेस्ट चीजों से हम कैसे बने रहे, तो आज फॉर्चुनेटली हम इंटरनेट की दुनिया में है, बट स्टूडेंट्स लोग इंटरनेट को बिल्कुल यूज नहीं करते। आपका टिकटॉक चलेगा, आपका व्हाट्सएप चलेगा, आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, लेकिन आप कभी भी लर्निंग वीडियोस नहीं देखते हैं। आप जैसे जो आपके जो क्लास में आप जो पढ़ रहे हैं, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, उसके वीडियोस नहीं देखेंगे। कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ये सारे क्वेश्चंस नेट पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस इनके एक्सप्लेन है कि एक नहीं 5-5, 10-10 वीडियो एक्सप्लेन है। तो इसको कहते हैं इंजीनियरिंग आईक्यू। इंजीनियरिंग आईक्यू मीनिंग को मैं ये कहता हूं कि आप एक इंजीनियर है तो आप किताब के अलावा कितना जानते हैं, ठीक है। खैर इसमें भी एक डाउट है कि आप किताब का भी कितना जानते हैं, लेकिन किताब के अलावा भी आप कितना जानते हैं। तो
जब आप कभी भी कोई जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो ये आपका इंजीनियरिंग आईक्यू ही है जो आपके इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन दिलाता है, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग आईक्यू बिल्कुल जीरो है। और इसका रीजन आप खुद हैं, क्योंकि आप जो है कभी भी इंटरनेट पे ये सारी चीजें नहीं देखते। आप फन की चीजें देखेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, लेकिन आप लर्निंग वाली चीजें नहीं देखेंगे। फॉर्चुनेटली लर्निंग वाली चीजें इतनी अच्छे फॉर्म में कुछ यूट्यूबर्स इतनी मेहनत करके वीडियो डालते हैं कि हम लोग भी सोचते हैं कितनी मेहनत होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे हमने आज के सेशन स्टार्ट किए, बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हमने स्टडी की। इवन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम बहुत ज्यादा डिटेल में ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेशन हमेशा रहता है, चाहे कितने भी दिन का सेमिनार क्यों ना हो, राइट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो चीजें हमने सीखी हैं सेशन के बाद आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें, देखें। काफी सारे सवालों के जवाब तो आपको वहीं मिल जाएंगे और बहुत सारा इंस्पिरेशन भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद मैं अब IoT पे आता हूँ। तो IoT में जो है आपको बहुत कम मटेरियल ऐसा मिलेगा जिसको आप एज ए स्टूडेंट समझ पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई मिक्स होके स्टैंडर्ड होके काम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा जो मटेरियल है वो शेयर करने के बजाय IoT में ऐसा मटेरियल आपसे शेयर करूंगा जो रिलेवेंट है, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो विश्वेश पूछ रहे हैं सर, कैन बी कॉल्ड AI एज एन इंडिविजुअल IoT सिस्टम। तो विश्वेश पूछ रहे हैं कि सर क्या हम AI को भी IoT सिस्टम कह सकते हैं। तो इनफैक्ट ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगेन जितने भी लोग एकेडमिक बैकग्राउंड से होते हैं, बी स्टूडेंट्स और इवन जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं, जो सारे एकेडमिक बैकग्राउंड से, एकेडमिक एनवायरनमेंट से आते हैं, उनमें क्या होता है कि आप लोग जितने भी एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, दे आर लाइक दे हैव अ कोर्स करिकुलम कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं तो हमने ये सीखा है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन जैसे आप इंडस्ट्री, मैंने भी एजुकेशन, मेरा बीटेक हुआ है, MBA हुआ है, तो वहां पे भी हम लोग ये सोचते हैं कि जैसा हम कॉलेज में पढ़ते हैं कि हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं और उसके बाद हमें फिर उसके मार्क्स मिलेंगे और वो सारी चीजों भी, तो जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड होता है वो एकेडमिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो मैं कुछ चेंजेस, ये क्वेश्चन आपने उठाया AI और IoT, थोड़ा सा बैकग्राउंड देके मैं इसके बारे में बताऊंगा। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है वो स्पेशलाइजेशन की बात करता है। हम जो कॉलेज में हर सेमेस्टर में 5 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, हर साल हम 10 कोर्सेज पढ़ रहे हैं, टोटल 4 साल में 40 कोर्सेज पढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको 4th ईयर में फर्स्ट ईयर का कोई कोर्स पूछा जाएगा तो आप भूल जाओगे, राइट। जबकि इंडस्ट्री में कैसा होता है, आप 5 कोर्स पढ़ो लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पढ़ो कि अगर आपको सोते से भी कोई उठाए, ठीक है, तो आपको वो चीज आनी चाहिए। सो दैट इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेज कि इंडस्ट्री टॉक्स अबाउट स्पेशलाइजेशन, इट डजंट टॉक अबाउट जनरलाइजेशन। जबकि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है दैट इज जनरलाइज। वो चाहता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इक्वल नंबर लाएं और तभी आपको IIT JEE में एडमिशन मिलेगा। जबकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो कहेगा आपको फिजिक्स आती है, बेसिक मैथ्स आता है, आई एम सॉरी ये बार बार या यस। तो अगर आपको बेसिक्स मैथ्स आता है और फिजिक्स आपका बहुत स्ट्रांग है, तो इट्स वेरी गुड, आप आइए हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। इसी तरीके से अभी ये जो सवाल है विश्वेश, इसका बैकग्राउंड ये है कि हम अगेन हर टेक्नोलॉजी को कैटेगराइज करने में लगे हुए हैं। क्या AI एक IoT है, क्या IoT AI इंक्लूडेड है, एंड सो ऑन। आप इन सभी टेक्नोलॉजी को इंडिपेंडेंट देखिए। AI IoT सिस्टम का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट्स अ इंडिपेंडेंट थिंग। तो अगर हम AI की बात करें तो AI बेसिकली एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी है और वो ये कहता है कि जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन सोचता है, ठीक है, वैसे ही जो है जैसे आपका जो ह्यूमन ब्रेन जैसे आपका सोचता है वैसे ही कंप्यूटर सोचने लगेगा और हमारे काम उसको करने लगेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, AI का एग्जांपल दे रहा हूँ। गूगल में जो प्रोग्रामिंग है अब AI सॉफ्टवेयर करते हैं, राइट। तो इस टाइप से सारी चीजें उसमें है। तो AI को IoT का सिस्टम आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि IoT का एप्लीकेशन क्या है। तो अगर IoT को बहुत ही सिंपल टर्म में बोले कि ऐसा कोई भी हार्डवेयर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और कोई भी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, वो एक IoT सिस्टम है। उसमें AI हो सकता है, उसमें मैकाट्रॉनिक्स हो सकता है, उसमें सर्वर भी हो सकता है, उसमें ऑर्डिनो हो सकता है, उसमें सेंसर हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, बेस्ड ऑन योर ओन एग्जाम्पल। फाइन। तो ये था। तो we can say AI is a part of IoT system. We cannot say
IoT system it based on your application. So like if we come from academic background, हम हर चीज के सीधे आंसर चाहते हैं, हम चाहते हैं हाँ या ना, जबकि इंडस्ट्री हाँ ना होती नहीं, इंडस्ट्री में ना हाँ होता है ना होता है, आपको कुछ बीच का ही सोल्यूशन निकाल के आना पड़ता है, राइट? तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो IoT में अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, ठीक है, तो आप सारी चीजों को अगर एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही आर्किटेक्चर में ला सकते हैं, तो ये वाली स्लाइड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जिसमें लेयर 5 को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि AI इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ IoT, इट इज ऑप्शनल पार्ट, राइट? लेकिन जो ये 4 पार्ट है, पार्ट 1, लेयर 1, 2, 3 एंड 4, दे आर मोर और लेस कंपल्सरी पार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कैन नॉट डू इसमें से अगर एक भी लेयर प्रेजेंट ना हो तो, राइट? तो हमने जस्ट टिंकरकैड से स्टार्ट किया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किया। आज हम सिर्फ लेयर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसको हम सेंसर और एक्चुएटर लेयर्स कहते हैं। तो पहले हम सेंसर्स और एक्चुएटर को समझ लेते हैं, राइट? तो आज हम सेंसर्स और एक्चुएटर लेयर को समझेंगे और उसके बाद अपन एक केस स्टडी लेके समझने की कोशिश करेंगे कल कि ये सारे एप्लीकेशंस हमारे कहाँ पे आते हैं। तो IoT अगर आपको कहीं भी लगाना है, ठीक है, तो अगेन मैं एक स्मार्ट कैंपस का एग्जांपल लेता हूँ। तो स्मार्ट कैंपस में जो है से मान लीजिए आप स्मार्ट स्ट्रीट लाइट इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप स्मार्ट कैंपस में अगर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो लेयर 1 कहाँ पे आता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट एज अ IoT प्रोजेक्ट या IoT प्रोडक्ट कैसे होगा। तो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में क्या क्या होना चाहिए? स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में हम लाइट्स को ऑन ऑफ कर पाए, हमारे पास उसका अभी लाइट इंटेंसिटी क्या है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। मेरा जो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है वो किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्टेड होना चाहिए, और जो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है वो जो है हम उसको मोबाइल ऐप से या फिर एक कंप्यूटर ऐप से, एक इंटरनेट वेबसाइट से हम उसको कंट्रोल कर पाए। तो ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट हुआ, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है कि आपका राइट फ्रॉम कि आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर पा रहे हैं, आप सेंसर की इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, और टिल द एंड कि आप उसको मोबाइल फोन से या किसी वेबसाइट से कंट्रोल करें। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है एक IoT प्रोजेक्ट है। अब इस IoT प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स क्या हुए? तो पहला जो पार्ट है दैट इज लेयर 1। सो लेयर 1 में हमारे पास होंगे सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। तो अगर हम सेंसर्स के एग्जांपल ले तो जो फोटो रजिस्टर हमने देखा था, ठीक है, वो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड है। तो फोटो रजिस्टर को हम एज ए सेंसर ले सकते हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में जो होगा, राइट? सेकंड जो है वो है लाइट जो है वो अपने आप में एक एक्चुएटर है, ठीक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेंसर्स। So sensor are physical devices which capture some physical quantity of real world like temperature, pressure, light, sound and motion. तो जो भी सेंसिंग है, जैसे टेम्परेचर क्या है, इस रूम का टेम्परेचर क्या है, आप जिस रूम में बैठे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर हमारे हम जानते हैं हर जगह एयर प्रेशर होता है। गर्मियों में हमें ऐसा लगता है जैसे कि एयर प्रेशर कम हो गया। आप अगर माउंटेन पे चढ़ेंगे तो आपको सांस फूलने लगती है। क्यों फूलने लगती है? क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है। अगर आप किसी ने भी घूमने के लिए आप हिमालय वगैरह कहीं गए होंगे तो ऊंची जगह पे गए होंगे तो आपको सांस फूलती है, क्योंकि जब वहाँ प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन कम होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को एसेंशियल वो नहीं मिल रहा। तो हम एयर प्रेशर मॉनिटर करें। गर्मियों में एयर प्रेशर कम होता है, ठंड में ज्यादा होता है। लाइट इंटेंसिटी कितनी है, कितनी धूप आ रही है हमारे एरिया में, नॉइज पोल्यूशन कितना है, साउंड कितना है। और साउंड सिर्फ नॉइज पोल्यूशन में यूज नहीं होता है, जो मोटर्स हैं इंडस्ट्री में, जो मोटर्स होती हैं, ठीक है, बहुत हैवी मोटर्स से मैन्युफैक्चरिंग होती है। मोटर्स जो है वो उसकी जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वो धीरे धीरे खराब होता है, राइट। तो जब वो खराब होता है तो हम उसको कैसे पहले से बता सकते हैं कि मोटर कितनी खराब हुई है? तो मोटर जैसे जैसे खराब होती है वो वाइब्रेशन करती है, उसमें साउंड आते हैं और उस साउंड को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उससे हम बता सकते हैं कि भाई मोटर कितनी खराब हुई है। मोशन, ठीक है, अगर हम कोई भी मोशन कर रहे हैं, अब मैंने टिल्ट सेंसर देखा था, आर्म का मोशन देखा था, तो इस टाइप के जो भी सेंसर्स हैं, तो ये जो सेंसर्स हैं ये इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं। तो सेंसर्स बेसिकली किसी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी में इसको कंपेयर करें, राइट, अपनी बॉडी से कंपेयर करें तो आईज, ईयर्स, है ना, टंग, स्किन, ठीक है, दीज आर ऑल ओवर 4-5 जो सेंसर्स हमारे एग्जैक्टली लाइक ये सेंसर देख इंफॉर्मेशन तो ग्रैब कर लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप सामने कोई गड्ढा है, आंखें से आप देख रहे हैं लेकिन किसी को गड्ढे में कूदना ही है, तो आंखें उसको रोक नहीं सकती। सिमिलरली अगर हमें कोई एक्शन करना है, कोई काम करना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो हम एक्चुएटर्स का यूज करते हैं। एक्चुएटर जो है वो एक्शन वर्ड से आया है और जो एक्शन वर्ड है दैट बेसिकली
का मतलब है जिसमें कोई एक्शन होता हो, राइट। तो अगर उसमें कोई एक्शन हो रहा है, अगर हमारा कोई एक्शन हो रहा है तो वो सारी चीजों को हम एक्चुएटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलईडी को हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। शुभम, आई थिंक आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। शुभम सराठे। ओके, तो जो डिवाइसेस हैं, just 1 minute. Yeah. Okay. So तो एक्चुएटर्स में आपके एलईडी हो सकते हैं जिसको हम सिंपल ऑन ऑफ कर रहे हैं, लैंप हो सकते हैं, घर में जो लैंप लग रहे हैं, डीसी एलईडी भी हो सकती है, फैन हो सकता है जिसकी जो स्पीड है वो आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, मोटर हो सकती है, आपका घर का एसी हो सकता है, या एसी मोटर हो सकता है, एनीथिंग, जो भी चीज आप मूविंग देख रहे हैं। अब इसमें कोई कैटेगराइज मत कीजिए आप कि इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड की चीज है या सीएस बैकग्राउंड का है। इवन कंप्यूटर ऑन ऑफ अगर आप करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर भी एक एक्चुएटर हो जाएगा, ठीक है। कि आप मैकेनिकल के हैं, आप गेट ओपन क्लोज करना चाह रहे हैं, तो एनीथिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन इज एन एक्चुएटर, राइट। तो दिस इज अबाउट सेंसर्स एंड दिस इज एन एक्चुएटर। तो बेसिकली जो एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दे रहा था कि भाई हमारे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में सेंसर्स क्या क्या होंगे। आपका फोटो रजिस्टर एक सेंसर हो सकता है। अगर आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि बैटरी कितनी चार्ज डिस्चार्ज हो रही है तो वोल्टेज मेजर करने वाले सेंसर, करंट मेजर करने वाले सेंसर हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो लाइट हमारा एक एक्चुएटर है, ऑन ऑफ हम रिले से करते हैं तो रिले आपका एक एक्चुएटर है। तो ये चीजें जो हो गई हमारी लेयर 1 में आई, सेंसर्स एंड एक्चुएटर। नाउ द्विति जी इज आस्किंग कि कौन सी कंपनी आईओटी की मांग करती है। तो अगेन आपको सिर्फ इंटरनेट पर सर्च करने की जरूरत है। सारी पॉपुलर आईटी कंपनी जो आप इंडिया में बात कर रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, ठीक है, ये सारी कंपनी आईओटी पे काम कर रही हैं। आईओटी पे बहुत तेजी से प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे। आईओटी बेसिकली जो है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी आईओटी का एप्लीकेशन उतना ज्यादा होता है, और इंडिया हम सभी जानते हैं सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो आईओटी इंडिया में बहुत तेजी से आएगा। अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज है तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट येस, इट इज नॉट अगेन अ थ्योरेटिकल टॉपिक, यू शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कौन कौन सी कंपनी कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे बहुत आराम से मिल जाएगी। हम जैसे बेसिकली रोबोटिक्स डोमेन में बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो इंडिया में रोबोटिक्स की बहुत 4-5 कंपनी है। एक ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल रोबोट है जिसका मैं वीडियो भी आने वाले सेशंस में शेयर करूंगा, जो हम खुद बना रहे हैं। तो ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल जो है बेसिकली इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है आपको बड़ी बड़ी मशीनें या बड़े बड़े स्पेशली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े बड़े ट्रैक्टर बन रहे हैं, तो उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो उसको इन्वेंट्री से बहुत तेजी से जल्दी जल्दी लाना होता है। तो जो रोबोट हम बना रहे हैं वो ऑटोनोमसली इस ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह खींच के लाएगा। तो इस टाइप के रोबोट्स हम बना रहे हैं, राइट। तो देयर आर सो मेनी कंपनीज व्हिच आर आस्किंग आईओटी एप्लीकेशंस। Sudhanshu is asking, sir, as a fresher, such technologies, IoT, robotics is needed for Infosys and Capgemini. देखिए, nothing technology is compulsory. देखो, again आपका जो सुधांशु जो अगेन ये क्वेश्चन जो है ये एक एकेडमिक क्वेश्चन है। सर मुझे एग्जाम पास करनी है तो मैं चैप्टर 1 पढ़ूं या ना पढ़ूं, या चैप्टर 2 पढ़ूं या ना पढ़ूं। इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं करती। इंडस्ट्री कभी आपको ये नहीं कहेगी कि आपको आईओटी आना चाहिए या आपको C++ आना चाहिए या जावा आना चाहिए। उनका कहना है कि आपको बेसिक लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए और आप चीजों को जल्दी सीख लें, ठीक है। सो अगेन आप ये ऐसा मत सोचिए कि आईओटी रोबोटिक्स आना जरूरी है, ठीक है। अगर आप C++ जावा में बहुत स्ट्रांग है तो भी आपका कैपजेमिनी में और इन्फोसिस में हो सकता है। लेकिन अगर आप आईओटी और रोबोटिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप शायद समझते हो कि जब भी अभी आज जितने भी इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, जितने भी सिलेक्शन जॉब इंटरव्यूज होते हैं, उसमें हजारों में से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इसका कारण क्या है कि जॉब्स नहीं है? ऐसा नहीं है, जॉब्स हैं उनके पास, आपको आता नहीं। और आपको इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका अप्रोच ये रहता है कि चैप्टर 1 मैं पढ़ लूँ, चैप्टर 2 पढ़ लूँ तो मेरा पासिंग हो जाएगा, 3, 4, 5 नहीं पढ़ना है। जबकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको सबके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और किसी एक के आप मास्टर होने चाहिए, ठीक है। आई होप सुधांशु आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो द्विज जी, मैंने सारी कंपनी इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस, ये सारी कंपनी जो है आईओटी पे काम कर रही है। तो आप आईओटी पे डालेंगे तो सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी।
ये मेन काम नहीं कर रही हैं, लेकिन साइड में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आईटी पे चल रहे हैं। विवेक इज आस्किंग सर वेयर वी कैन वर्क इन प्रोजेक्ट्स ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट द गेन नॉलेज। सबसे पहले आपको खुद प्रैक्टिकली इन चीज, जैसे जो किट्स हैं अभी अपन आज से स्टार्ट करेंगे, तो इस किट्स आप परचेज कीजिए, इसको खुद से इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर यू ट्राई फॉर इंटर्नशिप्स, कॉलेज लेवल पे आप कोशिश कीजिए कि आप इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करें, ठीक है, बट उसके लिए आपको एक खुद का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सो दिस इज अबाउट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। तो आई होप मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया कि सेंसर और एक्चुएटर क्या होता है। तो सेंसर्स को ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर इम्प्लीमेंटेशन। वन इज डिजिटल सेंसर, अदर इज एनालॉग सेंसर। सो डिजिटल सेंसर वो सेंसर होते हैं जिसमें सिंपल ऑन ऑफ ऑपरेशन हो, ठीक है, लाइक स्विच जो हमने यूज किया, पुश बटन जो यूज किया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल सेंसर। स्विच भी एक सेंसर है। कैसे सेंसर है? आपका क्रैश या लिमिट स्विच इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लिफ्ट है, आप लिफ्ट से कई आपने बड़े बड़े मॉल्स में लिफ्ट यूज की है, तो लिफ्ट कैसे लिफ्ट को पता चलता है कि वो लेवल 1 या लेवल 2 पे पहुंच जाता है? तो इसमें एक स्विच जैसा, एक लिमिट जैसा स्विच है कि जब लिफ्ट मूव करती है, स्विच को प्रेस कर देती है, तो लिफ्ट को इंटरनली उसके प्रोसेसर को पता चल जाता है कि लिफ्ट लेवल 1 पे पहुंच गई है। तो स्विच भी एक डिजिटल सेंसर है। टिल्ट सेंसर भी हमने देखा था, तो टिल्ट सेंसर भी एक डिजिटल सेंसर है। उसके बाद एनालॉग सेंसर क्या होता है? एनालॉग सेंसर में सिर्फ जीरो ऑन ऑफ नहीं होता, उसमें अलग अलग वोल्टेजेस हमें मिलते हैं। जैसे हमने देखा था पोटेंशियोमीटर जो है उसके अलग अलग वोल्टेजेस हम देखेंगे कैसे मिलते हैं। फोटो रजिस्टर, फोटोडायोड भी इसके एग्जांपल है। तो अलग अलग वोल्टेजेस का मतलब है, अगर लाइट कम है तो कम वोल्टेज मिलेगा, लाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, लाइट फुल है तो फुल वोल्टेज मिलेगा। तो जो अलग अलग वोल्टेजेस है, अलग अलग स्टेट्स आपको जो मिल रही है, उसको हम एनालॉग सेंसर्स कहते हैं। एक्चुएटर्स भी दो टाइप में आप ब्रॉडली इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। ऑल्दो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बट हमारे सेशन के लिए ये दो कैटेगरी काफी है, सफिशिएंट है। तो डिजिटल सेंसर जो है, अगेन जिसमें हम सिर्फ ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो एलईडी, बल्ब, मोटर, ये सारे डिजिटल सेंसर हो सकते हैं, एनालॉग भी हो सकते हैं, क्योंकि हम मोटर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इनकी स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एलईडी की इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे थे, हमने पोटेंशियोमीटर से एलईडी की इंटेंसिटी कंट्रोल करने वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो वहां पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एलईडी को एनालॉग फॉर्म में यूज कर रहे हैं और उसको जो है उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली मोटर को भी हम एनालॉग फॉर्म में यूज कर रहे हैं और उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको आईओटी प्रोजेक्ट, कोई भी एक आईओटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको सेंसर अगर आपको यूज करना है, तो सेंसर को आप ये पूछना पड़ेगा कि वो डिजिटल है या एनालॉग। सिमिलरली अगर आपको कोई एक्चुएटर कंट्रोल करना है, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि वो डिजिटल है या एनालॉग। तो इसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसको हम कैसे क्या यूज कर रहे हैं। ओके, सो अब जो हमारा बेसिकली जो सेंसर्स जो है, सेंसर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे सेंसर है, सेंसर की लिमिट ही नहीं है, जितने टाइप के आप सेंसर बोलेंगे उतने आपको मिल जाएंगे। कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया डिजिटल और एनालॉग सेंसर होते हैं। तो हमारे जो टिंकर कैड में जो मेन सेंसर्स हैं, वैसे लगभग मैंने सारे ही ले लिए, कुछ एक छोड़ के, जो कि जिसपे इम्प्लीमेंटेशन इतना सिंपल नहीं होगा, हम यहाँ सेशन में नहीं कर पाएंगे। लगभग सारे सेंसर जो अवेलेबल थे टिंकर कैड में वो सारे ले लिए हैं। तो उसकी एक लिस्ट में यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो वो लिस्ट क्या है? डिजिटल में आपके पास जो नॉर्मल पुश बटन या टॉगल बटन जो है, उसको हम डिजिटल सेंसर कह सकते हैं। टिल्ट सेंसर हमने यूज किया हुआ है, तो टिल्ट सेंसर को जो है हम एक डिजिटल सेंसर कह सकते हैं। और जो पीआईआर सेंसर है, पीआईआर सेंसर एक मोशन सेंसर है जो आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। तो ये मोशन सेंसर कैसे काम करता है कि अगर आप इस मोशन सेंसर के सामने कोई मोशन हो रहा है, तो ये आउटपुट में 1 देगा, अदरवाइज ये आउटपुट में 0 देगा, राइट। तो इस तरीके का ये पीआईआर सेंसर काम करता है। तो इसको भी हम क्विकली देखेंगे कि ये कैसे क्या वर्क करता है। इसका हम अभी टिंकर कैड पे वर्किंग करके देखेंगे। अनिल प्रसाद पूछ रहे हैं सर एक बार लास्ट स्लाइड वापस दिखाइए। तो ठीक है, देखिए स्लाइड में काफी देर तक ऑलरेडी रखता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपरली इन टाइम आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो मयंक भार्गव पूछ रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर और सेंसर में क्या डिफरेंस है। तो साइंस, ट्रांसड्यूसर इज अ टाइप ऑफ अ सेंसर। सेंसर एक ब्रॉड टर्म है जो बहुत सारी चीजों को यूज कर सकता है, और ट्रांसड्यूसर उसका एक टाइप है, ठीक है। सो दोनों मतलब सेंसर का पार्ट है ट्रांसड्यूसर।
फाइन, आई होप अनिल प्रसाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारे पास डिजिटल में स्विच है, ये आपका स्विच हो गया। टिल सेंसर है, ये आपका टिल सेंसर हो गया। और जो है ये आपका PIN सेंसर। राहुल कुमार आपका माइक अनम्यूट हुआ है। ओके, तो ये आपका मोशन सेंसर है। फाइन, नेक्स्ट जो सेंसर आपके पास है वो एनालॉग सेंसर। तो एनालॉग सेंसर क्या देंगे आपको, वोल्टेजेस देंगे, अलग अलग वैल्यूज देंगे, अलग अलग इंटेंसिटी पे। सिर्फ दिन रात नहीं होगी, सुबह दोपहर शाम भी होगी, राइट। तो दिन रात इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल, और सुबह दोपहर शाम इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग, राइट। तो पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल हमने देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर का एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने इसको किया। तो पोटेंशियोमीटर को अलग अलग जगह पे हम रखते हैं, तो हम अलग अलग वोल्टेजेस मिल रहे थे, तो हमने वोल्टेज डिवाइडर से उसको देखा था। फोटो रजिस्टर इज अ रजिस्टर, ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू लाइट के साथ साथ चेंज होती रहती है, राइट। तो लाइट के साथ साथ जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वो कैसे क्या कर सकते हैं हम आगे देखेंगे। फोटो डायोड भी एक फोटो रजिस्टर जैसा ही एक डिवाइस है। ये डायोड होता है जिसको रिवर्स बायस में यूज करते हैं। अगर आप डायोड आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डायोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। इसका मतलब डायोड जो है रिवर्स बायस में भी कंडक्ट करता है, लेकिन उसका करंट बहुत ज्यादा कम होता है। तो फोटो डायोड को ऐसा बनाया गया है कि अगर फोटो डायोड पे लाइट आती है, ठीक है, अगर फोटो डायोड पे लाइट आती है तो उसका जो रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो करंट चेंज होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो फोटो डायोड भी एक तरीके से इफेक्टिवली एक फोटो रजिस्टर की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन फोटो डायोड और फोटो रजिस्टर में एक मेन डिफरेंस ये रहता है कि फोटो डायोड IR रेज पे ज्यादा काम करता है, IR पे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब IR रेज हम जानते हैं कि IR रेज हमें दिखती नहीं है, ठीक है, तो IR रेज पे ज्यादा सेंसिटिव होता है। और फोटो रजिस्टर जो है वो नॉर्मल लाइट पे ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों मोस्टली सेम ही काम करते हैं। विश्वेश पूछ रहे हैं सर, सोलर पैनल इज ए सेंसर और नॉट। सोलर पैनल को आप सेंसर मान भी सकते हैं और नहीं भी, बट यहाँ पे ब्रॉडली कहेंगे तो सोलर पैनल एक सेंसर नहीं होगा, क्योंकि सोलर पैनल में वोल्टेज वेरिएशन आता है लाइट इंटेंसिटी के साथ। अगर सनलाइट ज्यादा है तो उसका वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगा। सनलाइट अगर कम है तो वोल्टेज और करंट उसका कम हो जाता है, लेकिन वो इतना स्मूथ नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए सुबह एकदम जैसे लाइट आई तो सोलर पैनल में थोड़ा वोल्टेज मिलेगा, लेकिन 8-9 बजते साथ वो फुल वोल्टेज देने लगेगा। फिर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक वो फुली वोल्टेज देता रहेगा। तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि अलग अलग दिन पे अलग अलग क्या वैल्यूज आ रही है। तो सोलर पैनल को हमें एक सेंसर नहीं कहना चाहिए, बट अगेन मैंने बोला इंडस्ट्री में सिर्फ हाँ ना जवाब नहीं होता है। अगर आप सोलर पैनल को सिर्फ दिन रात प्रिडिक्ट करने के लिए बोले, ठीक है, तो सोलर पैनल को एक सेंसर मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्रॉडली इन मोस्ट केसेस सोलर पैनल इज नॉट अ सेंसर। तो हमने यहाँ देखा फोटो डायोड। नेक्स्ट जो हमारा सेंसर है वो है टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर जो है वो आपका जो है बेसिकली आपको टेम्परेचर वैल्यू देता है। ये एक IC फॉर्म में मिलता है आपको, मतलब ये एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। और ये ऐसे काम करता है कि रूम का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें आपको अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे। तो टेम्परेचर जो है हम इसको टेम्परेचर सेंसर को भी आज करके देखेंगे। नेक्स्ट जो सेंसर है वो है गैस सेंसर, ठीक है। तो गैस सेंसर मतलब अगर इस रूम में जो LPG गैस सेंसर है, ठीक है, आपके घर में अगर गलती से गैस सिलेंडर चालू रह गया तो आग लगने के खतरे होते हैं। इवन कई जगह कई ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर जो है आपके होटल्स में या जहाँ पे आप खाना खाते हैं वहाँ के किचन बहुत छोटे छोटे बना जाते हैं, तो वहाँ पे कभी लीक हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो गैस सेंसर हमें इंडिकेशन देते हैं कि उस रूम में गैस प्रेजेंट है या नहीं। तो गैस सेंसर कैसे क्या काम करता है वो भी हम देखेंगे। सुधांशु पूछते हैं सर, कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सो इज अ सेंसर। yes, sensor is something which converts one form of energy to another form, but it should have, it's not directly, अगर हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक फॉर्म के हर जो चीज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में अगर चेंज कर रहा है तो वो सेंसर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंसर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो हमें इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस देता है फॉर एनी फिजिकल वेरिएशंस, राइट। इलेक्ट्रिकल इसलिए क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स से ही उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है, और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। और वो वेरिएशंस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर।
लाइक फॉर एग्जांपल जैसे फोटो रजिस्टर है, जैसे जैसे लाइट चेंज होगी उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो उससे पास होने वाला करंट यूनिफॉर्मली चेंज होगा, ठीक है। जबकि सोलर सेल जो है वो इतना यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। अगेन देखिए, हम वही है एकेडमिक तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज का हाँ ना में जवाब चाहते हैं, ठीक है। बट मैंने अगेन कहा, इस सोलर पैनल को अगर आप दिन रात के लिए यूज करेंगे तो वो अच्छा सेंसर काम करेगा, लेकिन अगर आप उसको फोटो रजिस्टर की जगह यूज करेंगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस एप्लीकेशन के लिए इसको यूज करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो गैस सेंसर आपका ये वाला सेंसर है, आप देख रहे हैं इसमें छेद हैं, तो इसमें बेसिकली गैस अंदर जाती है, इस चीज को वो डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो अल्ट्रासाउंड से काम करता है। अल्ट्रासाउंड आपका ट्रांसमिट करता है और जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतने रिफ्लेक्ट, तो अल्ट्रासाउंड ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट वापस आएगा और फिर उसको रिसीव करेगा। तो अल्ट्रासाउंड जाने और आने में जितना टाइम लगा, अल्ट्रासाउंड जाने और आने में हमें जितना टाइम लगा, उस टाइम को हम कैलकुलेट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर है। तो अल्ट्रासाउंड को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंसर है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं इसको सिमुलेट कर सकते, तो इसको हमें आर्डिनो की मदद से ही करना होगा। तो जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तभी हम अल्ट्रासोनिक सेंसर देखेंगे, आज हम इसको नहीं करेंगे। तो ये हो गए सारे सेंसर जो टिंकरकैड में अवेलेबल है। अब हम इनके कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। सो लेट्स गो टू टिंकरकैड। तो हम क्विकली जो है एक स्विच और एक टिल्ट सेंसर कैसे काम करता है वो हमने लास्ट टाइम देखा है। मैं इसको एक बार क्विकली करके यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको इसको सिमुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस सो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू एंड देन वी विल मूव ऑन टू डायरेक्टली PIR सेंसर पे हम देखेंगे। राइट, तो हमने इस सिमुलेशन को बिल्कुल सिंपली किया हुआ है। स्विच प्रेस करेंगे तो लाइट आपकी ऑन ऑफ, वेरी सिंपल। तो सो दिस स्विच इज एक्टिंग एज अ सेंसर हियर। इस स्विच को आप इस तरीके से ले सकते हो जैसे कि लिमिट स्विच के बारे में मैंने एग्जांपल लिया। आप आपके अगर कोई स्मार्ट स्विच बोर्ड या स्मार्ट होम ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके स्विच बोर्ड भी इस टाइप के हो सकते हैं, पुश बटन्स, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट स्विच। सो लेट्स quickly take the example of tilt sensor. अगेन आप देख रहे हैं, अगर there is no tilt, LED is off. When there is a tilt, LED is on. So there are only two state. Okay, this is off state and this is on state. Okay, no tilt state and tilt state. This is an example of tilt sensor. Okay, fine. So ये हो गया आपका स्विच और टिल्ट, क्योंकि ये सिंपल थे और हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए आप लोग को इसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज जो हम देखेंगे दैट इज बेसिकली वी विल डू PIR मोशन सेंसर। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ साथ कर सकते हैं। तो PIR मोशन सेंसर जो है वो मोशन को डिटेक्ट करता है। ध्यान रखिए, मोशन को डिटेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। दोनों में डिफरेंस है, हम समझने की कोशिश करें क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसके सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव केप्ट एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, तो ये इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर अपनी जगह बार बार चेंज कर रहा है, तो ये जब तक ये मोशन है तब तक ये डिटेक्ट करेगा, जब मोशन खत्म हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा।
हाउएवर इसमें थोड़ा सा डिले होता है, मतलब जैसे हमने इसको मोशन दिया तो ये कुछ सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद बंद होगा। ठीक है, अगेन PIR मोशन सेंसर जो है वो कैसे काम करता है, ये सेंसर मोशन को डिटेक्ट करता है। अगर इसके सामने कोई मोशन हो रहा है, ठीक है, अगर इसके सामने कोई मोशन हो रहा है तो ये आउटपुट हाई देगा, अगर कोई मोशन नहीं है तो ये आउटपुट लो देगा। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसका जो फर्स्ट पिन है, जो सेकंड पिन है उसको हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे, ये 5 वोल्ट पे काम करता है। सेकंड को जो हम ग्राउंड देंगे। हम सारे एक्सपेरिमेंट ब्रेडबोर्ड पे भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कोशिश करूंगा ब्रेडबोर्ड पे भी करने की। एंड दिस इज द आउटपुट। So let's change the colors. ओके, तो आप इसको करते जाइएगा, मैं क्विकली इसका सिमुलेशन भी आपको कर देता हूँ। तो जैसे आप इसको सिमुलेट करेंगे, अभी आप देख रहे हो कि इससे 5 वोल्ट सप्लाई दी है बट एलईडी ऑन नहीं है। अगर आप अब इस PIR मोशन सेंसर को अगर आप क्लिक करोगे, इसको आप क्लिक करोगे तो आप देख रहे हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी मेरा PIR उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि PIR मोशन को डिटेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता है। लेट्स मूव दिस। आप जैसे इसको मूव करेंगे आप देख रहे हैं कि इसमें भी एक लाइट जल रहा है और आपका एलईडी भी ग्लो हो रहा है। एलईडी को थोड़ा ब्राइट करते हैं हम इसको हम से 200 ओम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। या वन मोर थिंग जो मैं मिस कर गया था वो है कि एलईडी के कलर्स भी आप चेंज कर सकते हो, राइट? सो लेट्स टेक इट एज येलो और मे बी सम अदर कलर, ब्लू। आप देखिए ब्लू कलर से आपका ग्लो हुआ। ठीक है, तो आप मोशन करेंगे तो मोशन जैसे डिटेक्ट होगा उसके थोड़ी देर तक ये ऑन रहता है। आप देखिए तुरंत बंद नहीं हुआ, मोशन होने के बाद इसमें थोड़ी देर तक ऑन रहेगा और उसके बाद ये बंद रहेगा। ये मोशन को डिटेक्ट कर रहा है और ये इसकी रेंज है। अगर आप इसकी रेंज के इधर में लाएंगे तो ये काम नहीं कर रहा, इतने पास ये काम नहीं कर रहा, और बहुत दूर लेके जाएंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको मोशन दे रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द व्यू एरिया ऑफ द सेंसर। दिस इज कॉल्ड व्यू एरिया। इट्स ए टेक्निकल टर्म, और जब भी आप डेटा शीट्स वगैरह देखेंगे तो ये टेक्निकल टर्म सेंसर से मिलता है। तो व्यू एरिया जो है वो इसका इतना वाइड है। तो ये आइडेंटिफाई होता है मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एंगल से। टोटल जो व्यू एंगल है उससे डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो रजत शर्मा पूछ रहे हैं सर PIR सेंसर को मैक्सिमम कितना सप्लाई हम दे सकते हैं? तो PIR सेंसर यूजुअली 5 वोल्ट के लिए डिजाइन होते हैं, उसको हम 5 वोल्ट के ज्यादा नहीं दे सकते। साहिल पूछ रहे हैं सर क्या हम एरिया इंक्रीज कर सकते हैं? आप एरिया इंक्रीज नहीं कर सकते, जो PIR सेंसर के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं। व्यू एरिया आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इस PIR सेंसर में व्यू इंक्रीज करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। आपको व्यू के हिसाब से आप सेंसर्स खरीदते हैं मार्केट में। I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In practical, it would be view volume. करण मैं आपके बात को थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा प्रॉपर से कहेंगे?
अगला क्वेश्चन है सर, कैन वी यूज दिस पीआईआर सेंसर इन सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स ये बिल्कुल यूज भी होता है सिक्योरिटी सिस्टम में। आपके जैसे अभी आप जो कैमरा लगाते हैं, राइट, अभी सिक्योरिटी सिस्टम की बात अगर इंडिया की प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब होता है सीसीटीवी कैमरा। हम ये मान लेते हैं सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमारी सिक्योरिटी है, जबकि सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी नहीं है, वो तो चोर को पकड़ने का तरीका है। चोरी होने के बाद ही सीसीटीवी कैमरा आपको कुछ बताएगा, राइट, इससे पहले कुछ नहीं बताने वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मोशन सेंसर यूज कर सकते हैं, जिससे अगर कोई मोशन होता है तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और हम फिर रियल टाइम में, अगर आपके जो सीसीटीवी कैमरा जो है मोबाइल से भी एक्सेसिबल है, तो आप उसको रियल टाइम में देख सकते हो। इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। और सुयश पूछ रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तभी ग्लो करेगा? नहीं, जब आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मूव कराते हैं, ठीक है, आपने सेंसर को क्लिक किया और ऑब्जेक्ट को आप जब क्लिक करके मूव कराएंगे, ठीक है, क्लिक करने से जब आप उसको क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा मोशन उसमें होता है, राइट, इस वजह से वो ऐसा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं, आप उसको जब मूव कराओगे तभी वो अपडेट। तो करण, यस, तो डेफिनेट वॉल्यूम नहीं कहें उसको, एरिया कहें तो ज्यादा बेटर है। वॉल्यूम, यस, ओवरऑल वॉल्यूम होगा, तो यस डेफिनेटली एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही डिटेक्ट। द्विजी पूछ रहे हैं कि यस, हम इसको, यस, ऑर्डिनो के एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं टिंकर कैड में, जो हम कल से स्टार्ट। आप उस राहुल कुमार उसको क्लिक करके पास लाइए, इट्स वेरी सिंपल। आप सेंसर को क्लिक कीजिए और इसको पास में लाइए इस तरीके से। मयंक, आई थिंक आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कीजिए। इसके पहले भी शायद आपने माइक अनम्यूट किया था। नहीं, आपका तो म्यूट है, कोई और है, सॉरी। ओके, सो पीआईआर जनरली कितनी प्राइस में मिलता है सर, कितनी डिस्टेंस तक डिटेक्ट करता है? ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, मतलब दिस नॉट रिलेवेंट फॉर दिस सेशन, आप टेक्निकल क्वेश्चन पूछिए। ये 200-300 रुपए मिल जाता है मार्केट में, और अच्छी 10-20 सेंटीमीटर रेंज इसकी होती है। सर इसकी रेंज क्या है? मेनी पीपल इज आस्किंग अबाउट रेंज। तो जो फिक्स रेंज है, अगर सेंसर ने बोला है कि वो 20 सेंटीमीटर के लिए रेटेड है या 10 सेंटीमीटर के लिए रेटेड है, तो उससे ज्यादा आप उसकी रेंज नहीं बढ़ा सकते, आपको नया सेंसर खरीदना पड़ेगा। सो राहुल, ऑलरेडी इट इज देयर इन माय स्क्रीन, तो आई एम नॉट श्योर कि आप मुझे क्या पूछ रहे हो कि सर क्या फिर से दिखाना है। इट्स वेरी सिंपल, आप इसको क्लिक करें, आपको सिमुलेशन रन करना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट को आप जैसे मोशन करेंगे आपको जो है यहाँ पे एलईडी ग्लो करेगा। ओके, पार्वती पूछ रही है सर, एलईडी का कलर कैसे चेंज होगा? एलईडी को आप क्लिक कीजिए, आपको कलर ऑप्शन मिलेगा, उस कलर ऑप्शन से आप एलईडी के कलर को चेंज कर। ओके, सो मैं क्विकली इसको ब्रेडबोर्ड पे कर देता हूँ। काफी लोग ब्रेडबोर्ड पे करना चाह रहे हैं इसको, तो मैं इसको क्विकली ब्रेडबोर्ड पे कर देता हूँ। आप भी चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं।
ओके, तो मैंने इसको फटाफट ब्रेडबोर्ड पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके राहुल, मैं ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो PIR सेंसर की जो रेंज है वो मॉड्यूल पे डिपेंड करती है जो मार्केट में मिलता है। हमें ऐसे याद नहीं रहता है कि हर मॉड्यूल का क्या रेंज है। जहाँ तक मुझे ध्यान है PIR सेंसर का जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसकी रेंज 10-20 सेंटीमीटर होती है। कुछ हाई रेंज वाले भी मिलते हैं, जैसे अगर आप कभी किसी मॉल्स में गए होंगे, DB मॉल में अगर आप गए होंगे तो आप जब एंटर करते हैं तो गेट अपने आप ओपन हो जाता है, तो उसमें मोशन सेंसर PIR मोशन सेंसर ही लगा होता है, बट उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे डायरेक्टली पता पाना पॉसिबल नहीं है कि आपके सेंसर की रेंज क्या है। ठीक है, PIR सेंसर की पावर बहुत कम होती है, मिली एम्पियर में करंट कंज्यूम करता है। द्विवेदी जी, मैं आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं ऑलरेडी PIR सेंसर के बारे में काफी बता चुका हूं, तो और क्या डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलें तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा डिजिटल सेंसर्स के बारे में। अब हम एनालॉग सेंसर्स को थोड़ा देखते हैं, एनालॉग सेंसर्स हम कैसे करते हैं। ओके, तो एनालॉग सेंसर जो है, जो हमने डिस्कस किया था, वो जैसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, या यहाँ जो LDR लिखा है वो फोटो रजिस्टर ही है, इसमें सेम है, वो सेम टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाता है। यहाँ सेम टर्मिनोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं। तो फोटो रजिस्टर कैसे काम करता है, अगर लाइट इंटेंसिटी उस पे पड़ती है, उसके लाइट अगर उस पे पड़ती है तो जो है उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। बट मेरे जो डिवाइसेस होते हैं, ऑर्डिनो जैसे डिवाइसेस और इवन ओपैम्प और अलग जैसे जो डिवाइसेस होते हैं, वो डिवाइसेस जो हैं वो रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर पाते, वो या तो वो करंट मेजर करते हैं या वोल्टेज मेजर करते हैं, और ज्यादातर वोल्टेज ही मेजर करते हैं। okay? तो इसीलिए हमें इस सेंसर को डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, हमें इसके साथ एक सर्किट बनाना पड़ता है जो आप देख रहे हैं, जिसकी मदद से हम उस रेजिस्टेंस चेंज को वोल्टेज चेंज में कन्वर्ट करते हैं। फोटो रेजिस्टर ऐसे काम करता है कि अगर लाइट इंटेंसिटी चेंज हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। इस सर्किट की मदद से, ये बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, इस सर्किट की मदद से हम लाइट वेरिएशंस को वोल्टेज वेरिएशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा अपन यहाँ देखें। यहाँ जो LDR है इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो LDR की रेजिस्टेंस वैल्यू से हम कह लेते हैं R1, इसकी वैल्यू है R2 से फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमें जो यहाँ वोल्टेज मिलेगा इसके अक्रॉस, क्योंकि हम इस पॉइंट पे वोल्टेज निकाल रहे हैं, बीच में निकाल रहे हैं, और हमेशा वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस वोल्टेज आएगा वो आएगा VCC इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि I जो इस ब्रांच से, इस पूरे ब्रांच से जो करंट जाएगा वो होगा V इनपुट, जो आपका VCC है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2, और आपका जो वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालने का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो मतलब हम रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं, दैट इज IR2। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज इज इक्वल टू R2 इंटू V इनपुट डिवाइड बाय R1 पर R2, ये हमने कल ही देखा था वोल्टेज डिवाइडर रूल से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे लाइट वेरिएशंस चेंज होते हैं और हमारा जो वोल्टेज है वो कैसे चेंज होता है। तो ये अभी अपन टिंकरकैड में जाके देखते हैं। अच्छा, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने LDR फोटो रजिस्टर को यूज किया है, उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगाया है, फोटो रजिस्टर के इधर हमने सप्लाई दे रखी है। जब लाइट इस पे जो फोटो रजिस्टर पे जो लाइट इंटेंसिटी चेंज होगी तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिससे ओवरऑल करंट चेंज होगा। ओवरऑल करंट चेंज होने से इस पॉइंट पे जो वोल्टेज आ रहा है वो चेंज होगा। इस चेंजिंग वोल्टेज को हम देखेंगे, और इस पे जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज डिवाइडर रूल के फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है, विच इज दिस, जो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो लेट्स डू द प्रैक्टिकल. तो आप साथ साथ में बना सकते हैं. मैं एक नया सर्किट क्रिएट कर रहा हूँ. तो अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेंगे. हम 9 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हैं, पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं. कॉइन सेल भी आप यूज कर सकते हैं. तो चलिए आज हम कॉइन सेल यूज करते हैं. कॉइन सेल हम इसको ले लेते हैं. इसके बाद हमको चाहिए है फोटो रजिस्टर. मेरी वॉइस आई थिंक सभी लोग को क्लियर है. शिखा, कभी कभी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है. आई एम ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड इंटरनेट कनेक्शन, तो मेरे एंड से प्रॉब्लम होने कम है. अगर बाकी पार्टिसिपेंट्स भी बोल रहे होंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम. तो हम एक फोटो रजिस्टर्स ले लेते हैं. हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं. तो हमने कॉइन सेल लिया. कॉइन सेल का ये पॉजिटिव है, मेरा ये फोटो रजिस्टर है. फोटो रजिस्टर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है. ये रजिस्टर की वैल्यू मैं 10 किलो ओम सेट करूंगा. इन जनरल 10 किलो में उससे ज्यादा वैल्यू सेट की जाती है. तो आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं. अब अपन चाहें तो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बिकॉज अब हम लोग टिंकरकैड पे काफी फैमिलियर हो चुके हैं. लेट्स चेंज द कलर्स ऑल्सो. कलर चेंज करना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि आपको क्लैरिटी रहती है कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है. रियल में भी अगर ब्रेडबोर्ड पे आप काम कर रहे हैं, इट्स बेटर दैट you also use proper colors of wires. Let's see this. You are saying that now the battery voltage is 3 volt and this is photoresistor, and right now the voltage that you are getting is 158 millivolt. When I click this, presently there is a dark. So dark में ऐसा नहीं इसका resistance infinite हो जाएगा, थोड़ा resistance रहेगा लेकिन काफी ज्यादा रहेगा. So because of voltage divider rule, this resistance is more than this resistance. So voltage drop is more here, and अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो voltage here will be very less. या ओवरऑल बात करें तो अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो मेरा जो LDR है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. उसका रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो हमें वोल्टेज कम मिलेगा. मेरे ख्याल से बाकी विष्णु, आई थिंक बाकी सभी लोगों को वॉल्यूम सही से सुनाई दे रहा है. तो आई थिंक आप अपनी साइड से प्रॉब्लम चेक करें. अब अगर आप जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं वोल्टेज में आपको ग्रेजुअल चेंजेस मिल रहे हैं. राइट, तो मैक्सिमम 2 वोल्ट तक जा रहा है, 2.85, विच इज वेरी नियर टू 3 वोल्ट, क्योंकि 3 वोल्ट का ही है. राइट, अब जैसे जैसे इसको इंटेंसिटी कम करेंगे तो वोल्टेज आपको कम मिलेगा. आप इसको इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज आपको. राइट, तो आप इसको मेरे साथ साथ कर सकते हैं. मैं फटाफट इसको ब्रेडबोर्ड पे भी इम्प्लीमेंट करके आपको देता हूँ ताकि आप भी ब्रेडबोर्ड पे ट्राई कर सकते हैं. सुयश, आपका मैक्सिमम 2 वोल्ट जा रहा है. आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या सेट कर रखी है? मैंने अभी बताया आपको 10 किलो ओम रेजिस्टेंस वैल्यू लेनी है. जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो आपको 10 किलो ओम लेनी है. तो आप उसको 10 किलो ओम कीजिए.
अच्छा, Suyesh is asking sir, how to decide that we take 10 kilo ohm और 1 kilo ohm? So इसमें बहुत डिटेल स्टडी की जरूरत होती है। बेसिकली हमें जो रेजिस्टेंस लेना होता है आपके एलडीआर के साथ, वो एलडीआर के रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए, राइट? सो एलडीआर जो है वो मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस दे रहा है और मिनिमम कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, उसके बीच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट लेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं अभी आपको, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको अभी एक मल्टीमीटर से ये जब सबका हो जाएगा तो दिखाऊंगा कि इस मल्टीमीटर से हम थर्मिस्टर जो फोटो रजिस्टर है उसका रजिस्टर वैल्यू मेजर करेंगे और उस हिसाब से हम जो है रजिस्टर डिसाइड करेंगे। अभी हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ब्रेडबोर्ड पे मैंने भी करके दिखा दिया आपको दोनों एक्सपेरिमेंट्स। सभी पार्टिसिपेंट्स इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, अगर फ्यूचर में आपको कोई डाउट हो तो आप इन स्क्रीनशॉट को रेफर कर सकते हैं। अराउंड 10 स्टूडेंट्स का हो चुका है, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी फटाफट करें इसको। चलिए ग्रेट, काफी सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। जिनका अगर पहला वाला विदाउट ब्रेडबोर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया होगा तो भी अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे रेजिस्टेंस हम डिसाइड करते हैं एलडीआर का, तो इसकी थोड़ी प्रोसेस में बताता हूँ। ऑल्दो ये बहुत डिटेल एनालिसिस होते हैं, क्वेश्चंस आ गए हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट्स टेक दिस, हम जो है अगेन एक फोटो रजिस्टर लेते हैं, ठीक है, और हम लेते हैं मल्टीमीटर। हमारा मल्टीमीटर जो है वो ओम मीटर भी है, वो हमें रेजिस्टेंस भी बताता है। सो लेट्स कनेक्ट दिस। तो आप देख सकते हैं, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर आर तीन वैल्यू है। तो आप इसको यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो मोड में जाके आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको रेजिस्टेंस मोड में सेट कर दिया। हम इससे करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं। तो
मैंने इस रेजिस्टेंस पे सेट कर दिया। अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी आप देखिए कि जब डार्क लाइट है तो मेरा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, 180 किलो ओम आ रहा है। ठीक है, जब मैं इसको ब्राइट लाइट करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 500 ओम। ठीक है, तो इसके बीच की वैल्यू हमें लेनी होती है, और सबसे बेस्ट वैल्यू अगर देखी जाए तो इसमें होगी 47 के या 100 के। आइडियली इसका एवरेज हमें लेना है, तो 500 ओम ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्योंकि 180 के से आप उसको डिवाइड करेंगे तो 100 किलो ओम के आसपास आपको वैल्यू लेनी चाहिए। बट ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इन प्रैक्टिस आपको इतने एक्सट्रीम डार्कनेस और इतने एक्सट्रीम ब्राइटनेस नहीं मिलती। तो ये जो वैल्यू है आपको अपनी लाइट इंटेंसिटी के साथ डिसाइड करना होता है कि आपका एलडीआर जिस एनवायरनमेंट में यूज हो रहा है वहाँ पे मिनिमम लाइट और मैक्सिमम लाइट कितनी है। तो से फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि हमारा जो मिनिमम लाइट है वो इतनी ही रहेगी, राइट, 1 किलो ओम के आसपास से रहेगी या 2 किलो ओम के आसपास रहेगी, और मैक्सिमम लाइट जो हमारी होगी वो से इतनी रहेगी, राइट। तो इसके बीच का रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू लेनी है एलडीआर के साथ में तो वो मिनिमम और मैक्सिमम से बीच में आपको लेना है। तो 10 किलो ओम आप ले सकते हैं, 47 किलो ओम ले सकते हैं, 1 किलो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब बहुत ब्राइट लाइट होती है तब ये 500 ओम दे रहा है, तो 1 किलो ओम काफी कम होती है। अगर आप इसके बीच की वैल्यू नहीं लेते हैं तो आपको वोल्टेज वेरिएशंस बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। तो देखिए, मैं जैसे अपन एग्जांपल यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं 1 किलो ओम ले लेता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो जैसे एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये फुल वोल्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आप बहुत कम वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज आपको, जो बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट है तो मैक्सिमम 3 तक जाना चाहिए, लेकिन ये 2 तक ही जा रहा है अगर हम बहुत कम रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे। और अगर अपन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू लेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको 150 किलो ओम ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है कि बहुत कम वोल्टेज नहीं मिलेगा। देखिए 1.36, 1.36 के कम आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो मिडल वैल्यू अगर आप रखते हैं, फॉर एग्जांपल 47 रखते हैं या 100 के रखते हैं, तो आपको अच्छे वेरिएशंस मिलेंगे। मिनिमम वोल्टेज आपको मिली वोल्ट मिल रहा है, विच इज 0.6 वोल्ट, और मैक्सिमम आपको मिल रहा है और अप्रोक्सीमेटली 3। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरीके से हम एलडीआर के साथ वाले रेजिस्टेंस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आपको एक छोटा सा चेंज करना है इसी सर्किट में। यस, तो नितिन शर्मा ने बिल्कुल सही कहा, ये आपके जो वोल्टेज की जो प्रिसीजन है उसके वेरिएशन को अफेक्ट करता है। अगर आप एलडीआर रेजिस्टेंस की सही वैल्यू लेंगे तो आपको ज्यादा प्रिसीजन वैल्यू मिलेगी, अगर आप गड़बड़ लेंगे तो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज मिलेगी, मतलब कुछ रेंज आप प्रिसीजन, थोड़ा सा प्रिसीजन आपको कम मिलेगा। तो यहीं पे आप फटाफट हम देख लेते हैं फोटो डायोड को। फोटो डायोड बिल्कुल फोटो ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है, ओनली थिंग इज कि ये आईआर रेज पे काम करता है। तो क्योंकि सिमुलेशन में आईआर रेज हो या नॉर्मल लाइट, हम तो सिमुलेट कर रहे हैं, दोनों एक ही होता है। हम क्विकली इसको करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है फोटो डायोड को मैं हटाता हूँ, फोटो रजिस्टर को मैं हटाता हूँ और मैं फोटो डायोड लेता हूँ। ध्यान रखिए, फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होता है। दिस इज फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में हम एनोड को, कैथोड को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैथोड को पॉजिटिव। सभी पार्टिसिपेंट को फिर से बोल रहा हूँ, वी हैव टू कनेक्ट कैथोड टू पॉजिटिव, बिकॉज इन फोटो डायोड इट इज रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, रिवर्स बायस में काम करता है। एंड एनोड टू अदर एंड। ठीक है, सिंपल से कनेक्शन है। सिमुलेट करते हैं। तो अभी हमें दिख रहा है वोल्टेज बहुत कम है, जैसे जैसे हम अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे हमें वोल्टेज जो है वो फिल मिलेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा 10 किलो ओम लगाने के बावजूद हमें फुल वोल्टेज नहीं मिला। इसका मतलब फोटो डायोड की रेजिस्टेंस वैल्यूज अलग होंगी। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। हम इसको 47 किलो ओम रखते हैं, तो आप देखिए अब आपको फुल वोल्टेज मिलने लगा। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, क्योंकि 3 वोल्ट से ज्यादा तो वोल्टेज आना ही नहीं चाहिए। आई डोंट नो कैसे आया हुआ है।
या मे बी दिस इज 3 वोल्ट बट इट इज नॉट गिविंग एग्जैक्टली 3 वोल्ट. कॉइन सेल होगा तो यह हो सकता है एग्जैक्टली 3 वोल्ट ना दे. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वोल्टेज वेरिएशन मिल रहा है. सो देयर इज सम मिस्टेक, आई थिंक देयर इज सिमुलेशन मिस्टेक हियर. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 3 वोल्ट. तो फटाफट आप फोटो डायोड वाला एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. बढ़ गया. ऋषभ गुप्ता, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए. So this your voice is not coming, looks like. Okay sir, my voice is I think clear sir. अभी आ रही सर मेरी वॉइस? Yes, sir. Okay. So I hope this is simple experiment. तो आप जिनका नहीं हुआ वो बाद में इसको कर सकते हैं. Let's move on to our next experiment because we are short of time. अब हम देखेंगे टेम्परेचर सेंसर कैसे क्या काम करता है. I think all participants are able to listen to me. मेरी वॉइस आ रही होगी सभी को. मैं अब आगे बढ़ता हूँ. अब हम ले रहे हैं टेम्परेचर सेंसर. तो टेम्परेचर सेंसर अगेन आपको इनपुट में मिलेंगे. दिस इज TM36. ठीक है, TMP36. इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस. अगेन वी विल टेक अ पावर सप्लाई. इसको 5 वोल्ट सप्लाई देनी होती है. और 5 वोल्ट के साथ इसमें वोल्टेज वेरिएशन हमको मिलते हैं. तो देखते हैं कैसे क्या काम करता है. तो इसमें ऐसा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इस पे 7.5 मिली मतलब 0.75 वोल्ट आ रहा है या 749 मिली वोल्ट आ रहा है. तो जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज चेंज करते हैं इसकी जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आते हैं. तो आप जैसे टेम्परेचर को 0 रखते हैं तो 0 टेम्परेचर पर, ठीक है, 0 टेम्परेचर पर ये आपको 500 मिली वोल्ट वोल्टेज दे रहा है. ये जो सेंसर है 0 डिग्री टेम्परेचर पर आपको 500 मिली वोल्ट वोल्टेज दे रहा है. 5 पे, ठीक है, ये आपको 550 मिली वोल्ट दे रहा है. मींस फॉर एवरी डिग्री इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मिली वोल्ट. थोड़ा ज्यादा भी है लेकिन अप्रोक्स हम मान के चलें तो 10 मिली वोल्ट या 11 मिली वोल्ट के आसपास जो है आपको वैल्यू मिल रही है. तो हम लेट्स टेक से
25 पे जो है आपको इस तरीके से वेरिएशंस मिल रहा है। सभी लोग फटाफट इसको करके कर लीजिए। टिंकरहैड में LM35 नहीं है, TMP 36 ही अवेलेबल है। मैं सबको रिमाइंडर दे रहा हूं कि हम जो आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो लेयर 1 है, लेयर 1 ऑफ IoT आर्किटेक्चर, जिसमें हम सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कैसे डिजाइन करते हैं वो हम देख रहे हैं। हम बहुत सारे सेंसर्स को देख रहे हैं फिलहाल। अभी हमने बहुत सारे सेंसर देखे, डिजिटल सेंसर हमने देखे, अभी हम एनालॉग सेंसर्स कवर कर रहे हैं और इस तरह से हम सारे सेंसर्स देखेंगे जो कि टिंकरकैड में अवेलेबल है। मैं 2 मिनट का टाइम और दूंगा ताकि जिन लोग का बचा है वो भी फटाफट कर लें। ग्रेट, तो काफी सारे लोगों का जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंसर इज गैस सेंसर। रेड एम आई थिंक आपका माइक अभी अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लीजिए। तो गैस सेंसर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, तो हम गैस सेंसर पहले देख लेते हैं। Samina Abbas is asking what is the difference between a temperature sensor and a thermostat. Basically temperature sensor जो आप देख रहे हैं वो thermostat से ही मिलके बना होता है। So thermostat is like photoresistor। फोटोरेजिस्टर कैसे काम करता है, लाइट जैसे चेंज होगी तो फोटोरेजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज होगा। वैसे थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता है जैसे ही लाइट उस पर पड़ती है, सॉरी हीट के हिसाब से थर्मोस्टेट चेंज होता है। तो टेम्परेचर सेंसर में एक कॉम्प्लिकेट सर्किटरी होती है जिसमें थर्मोस्टेट को वो यूज करके आपको एक ज्यादा एक्यूरेट जो है वैल्यू देते हैं। थर्मोस्टेट इतना एक्यूरेट नहीं होता है, तो थर्मोस्टेट को अच्छा सर्किट के साथ जोड़ के हम एक्यूरेट वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो थर्मोस्टेट और टेम्परेचर सेंसर देखा जाए, डायरेक्टली देखा जाए तो सेम है, लेकिन अगर हम प्रॉपर बात करें तो टेम्परेचर सेंसर के अंदर थर्मोस्टेट होता है।
प्रियांशु, आपका जो 749 मिली वोल्ट आ रहा है वो सही आ रहा है। आई थिंक आप मेरे लेक्चर्स को ठीक से नहीं देख रहे हैं। अलग अलग डिग्री पर अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे आपको, डिग्री नहीं आएगी, ठीक है। इसके आउटपुट में आपको कितने डिग्री टेम्परेचर है वो नहीं पता चलेगा, आपको वोल्टेज ही मिलेगा। अब इस वोल्टेज को आपको फॉर्मूला से कन्वर्ट करना होता है एक्चुअल डिग्री में, जो हम प्रोग्रामिंग सेशन में देखेंगे। तो प्लीज मेरे लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एक गैस सेंसर होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क होता है। गैस सेंसर जो है 6 पिन का एक टर्मिनल होता है। हम जब प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो आप उसमें देखेंगे, जिसमें A1 A2 B1 B2 दो टर्मिनल है। ये A1 A2 आपस में शॉर्ट होते हैं, B1 B2 भी आपस में शॉर्ट होते हैं। तो इसको अलग से इसलिए दिया गया है ताकि इसमें ज्यादा करंट फ्लो हो सके। H1 H2 के बीच में एक कॉइल होती है। तो जरा हम गैस सेंसर की वर्किंग को समझते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो दो टर्मिनल है A1 या A2, ए और बी बोल देते हैं। तो ए टर्मिनल बैटरी के 5 वोल्ट से कनेक्टेड है और बी टर्मिनल जो है वो आउटपुट एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो बेसिकली कैसे काम कर रहा है, H1 H2 पे अपन ने जो है वोल्टेजेस लगाए हुए हैं। तो ये कॉइल है, ये आप एक देख रहे हैं, ये एक कॉइल है। तो ये जो कॉइल है, जब इससे करंट फ्लो होता है तो ये कॉइल गर्म होती है, ठीक है, हीट अप होती है। जब भी गैस, जैसे कि एलपीजी गैस हो गया या धुआं हो गया, ये सारी चीजें जब गैस इस चेंबर में घुसती है, तो बिकॉज ऑफ दिस कॉइल जो कि हीटेड है, वो गैस भी हीट हो जाती है। और जब गैस हीट होती है तो दोनों प्लेट जो आपस में डिस्कनेक्टेड है, आपस में शॉर्ट नहीं है, वो गैस के थ्रू, जो गैस जलती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो वो गैस के थ्रू कंडक्ट करने लगता है, ठीक है। मतलब जो मेरा जो ये दो प्लेट है जो आपस में नॉर्मली डिस्कनेक्टेड है, इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब गैस आएगी और गैस को हम गर्म करेंगे, गैस जलेगा, तो गैस जलने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में करंट फ्लो होने लगेगा। ये करंट फ्लो होने की वजह से वो जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस से पास होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिलेगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा कि मैं जब इस कॉइल में हम हमेशा करंट दे रहे हैं तो एक कॉइल हमेशा गर्म रहेगी। अगर कोई गैस नहीं है, ठीक है, तो कोई गैस नहीं चलेगी और इन दो टर्मिनल के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और मुझे यहाँ आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर कोई गैस है तो वो गैस इस चेंबर में जाने के बाद जलेगी, बर्न आउट होगी, बर्न होगी। इस बर्न होने से ये दोनों जो प्लेट है आपस में करंट कंडक्ट करने लगेंगे और करंट कंडक्ट करने से मुझे बाहर जो है आउटपुट में मुझे करंट मिलेगा और मुझे वोल्टेज मिलेगा। तो गैस के प्रेजेंस की वजह से यहाँ वोल्टेज मिलेगा और गैस अगर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस तरीके से गैस सेंसर काम करता है। तो क्वेश्चन ये है कि सर इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रिंसिपल काम करता है। यस, तो बेसिकली कैसा है कि हवा से भी आपका करंट फ्लो हो सकता है। अगर हवा में नमी हो या हवा में वोल्टेज बहुत ज्यादा, जैसे बिजली जो हमारी कड़कती है बादलों से, तो हवा से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाता है बादलों में और अर्थ के बीच में कि बिजली कड़कती है। तो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तो यहाँ नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा है कि कॉइल जब गर्म होती है तो इस गैस को बर्न करती है और ये गैस बर्न होने की वजह से इसके बीच में जो है कंडक्शन होने लगता है। तो अगर गैस होगी तो कंडक्शन होगा तो मुझे वोल्टेज मिलेगा, और गैस नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा और मुझे यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। गैस सेंसर में 6 टर्मिनल होते हैं, जिसमें A1 A2 B1 B2 आपस में शॉर्ट होते हैं। H1 और H2 के बीच में जो है हम एक कॉइल लगाते हैं, ठीक है। ये कॉइल को जब हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, जब इस कॉइल को हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो ये कॉइल जो है ये हीटअप होती है और ये कॉइल हीटअप होती है। इस हीटअप होने की वजह से अगर गैस आएगी तो गैस कंडक्ट करने लगेगा A1 और B1 के बीच में, और गैस नहीं आएगी तो कोई कंडक्शन नहीं होगा। और कंडक्शन होगा तो करंट फ्लो होगा और मेरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज मिलेगा। अगर कंडक्शन नहीं होगा तो मेरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज मुझे नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस इज द वर्किंग। आप इस सर्किट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो
हमने गैस सेंसर लिया, हम पावर सप्लाई लेते हैं, फिर हमको एक हमारे मल्टीमीटर भी चाहिए, फिर हमें वोल्टेज, हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप देख रहे हैं H1 को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, H2 को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं, A1 A2 को हम आपस में शॉर्ट करके वापस इसको पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। ये तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। अच्छा, इसमें हो सकता है आप गलती करें तो मैं फिर से आप लोग के लिए करता हूँ। A1 को भी पॉजिटिव देना है, A2 को भी पॉजिटिव देना है। और हमें पॉजिटिव यहीं से मिल रहा है, यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ ले लूंगा, यहाँ से एक कनेक्शन मैं, ठीक है। A1 और A2 को मैंने शॉर्ट कर दिया है। ऐसे B1 को मुझे B2 से शॉर्ट करना है, लेकिन H2 से शॉर्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने ऊपर से निकाला, ठीक है। मुझे B1 और B2 को आपस में शॉर्ट किया और फिर मैंने इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस जो है वापस मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अगेन इसमें इन जनरल 10 किलो ओम रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, सेम रीजन। नो गैस और गैस में आपको क्या डिफरेंस मिलता है, तो हम रफली 10 किलो ओम यहाँ वैल्यू ले सकते हैं। अब हम मल्टीमीटर लेंगे, सभी को हम प्रॉपर कलर दे दें। ठीक है, तो हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें सिमुलेशन को रन करते हैं। तो आप देखें, ये आप जब इस पे क्लिक करेंगे या आप सिमुलेशन रन करने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ एनिमेशन काफी अच्छा आया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ धुआं है, अभी मेरे गैस सेंसर पे कोई धुआं नहीं है। जब हम इसको थोड़ा पास लाते हैं, जैसे जैसे इसको पास लाते हैं, मेरा वोल्टेज जो है वो बढ़ता जाता है और कहाँ तक जा रहा है, ये 4 वोल्ट तक जा रहा है, ठीक है। हम रेजिस्टेंस थोड़ा कम करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि अलग अलग इस पे हमें अलग अलग जो है वोल्टेजेस मिल रहे हैं। तो अगेन मैं सबको थोड़ा टाइम देता हूँ, आप फटाफट इसको इम्प्लीमेंट कर लें। द्विवेदी पूछ रहे हैं कि गैस कैंसर के साथ हम बजर कैसे कनेक्ट करें। तो बजर एक डिजिटल डिवाइस है और गैस एक एनालॉग डिवाइस है। तो एनालॉग डिवाइस को डिजिटल डिवाइस से हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई सर्किट बनाना पड़ता है। तो मे बी कल मैं उसके बारे में शायद डिस्कस करूं कि हम कैसे क्या करेंगे। आज तो भी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अगेन आप एलईडी लगा के डिटेक्ट कर सकते हो, बट एलईडी जो है ऑन ऑफ नहीं होगी, वो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ जलेगी, ठीक है। जब गैस नहीं है तब भी एलईडी आपकी डिम जलेगी और गैस है तब ब्राइट जलेगी। तो इस तरीके से हम नहीं चाहते कि एलईडी इस तरीके से काम करे, राइट।
इसलिए यहाँ एलईडी इंडिकेशन हम नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं जब गैस नहीं है तो भी हमें 2 वोल्ट मिल रहा है, और जब गैस है तो हमें लगभग 3.5 वोल्ट मिलता है। ओके, मानसी कह रही है कि उनका 0 वोल्ट आ रहा है। तो मानसी आप अपने कनेक्शन एक बार चेक कीजिए, ध्यान रखिएगा ये आपने ठीक से कनेक्शन शायद शॉर्ट नहीं किए होंगे, ठीक है। ये वाले जो कनेक्शन है, या आपको H2 को आपने B1 से जोड़ दिया होगा, B1 B2 को जोड़ना है, H2 को नहीं जोड़ना है, H2 को B1 से नहीं जोड़ना है, आपने इन तीनों को जोड़ दिया होगा। तो वो थोड़ा सा एक बार आप चेक कीजिए। जयंत कुमार कह रहे हैं सर, कैन वी कंक्लूड दैट डेंसिटी ऑफ गैस अफेक्ट्स द कंडक्टिविटी ऑफ गैस सेंसर? यस, राइट, इट्स वेरी राइट। वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ गैस जो है उसी से कंडक्टिविटी डेफिनेटली अफेक्ट होती है। सो दिस इज वेरी राइटली सेड। ओके, तो आई थिंक 2:50 हो रहे हैं। आज हम सेशन यही क्लोज करते हैं। इस सेशन का थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं जो हम कल करेंगे। आप चाहें तो अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो आप चाहें तो कुछ डाउट्स अगर हों तो आप पूछ सकते हैं। तो हम इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे रोज। फर्स्ट 15 मिनट्स मैं शार्प 1 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। तो जिनको डाउट्स है वो जल्दी आ जाएं, अपने डाउट पूछ लें। 1:15 से अपन स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2:45 तक हम क्लोज करें, और उसके बाद 10-15 मिनट्स के लिए डाउट सेशन हम ओपन रखेंगे। तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वो करें, जिनको डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शिखा, आप अपने कनेक्शन चेक कीजिए, देयर इज नो अदर रीजन। आपका कनेक्शन आपने सही नहीं किए होंगे, ठीक है। ये वाले कनेक्शन आप चेक कीजिए, ठीक है। ये वाले जो कनेक्शन हैं, ये कनेक्शन जो है रेजिस्टेंस के आपने कनेक्शन सही से कनेक्ट किए कि नहीं किए, देयर इज ओनली कनेक्शन प्रॉब्लम। करण पूछ रहे हैं सर, हमने इसमें A1 A2 को शॉर्ट क्यों किया है? तो अगर आपको सर्किट डायग्राम जो मैंने दिखाया था उसमें आपको ध्यान होगा कि इंटरनली भी वो शॉर्ट होते हैं। तो शॉर्ट नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो इंटरनली कनेक्टेड ही होते हैं। A1 और A2 इंटरनली कनेक्टेड होता है, B1 B2 इंटरनली ही कनेक्टेड होते हैं। अब हाँ सर, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि A1 A2 अगर अंदर से शॉर्ट है तो हमने शॉर्ट क्यों किया, मतलब इस तरह। इट्स अ हैबिट कि देखिए अगर वो करंट ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या थ्योरेटिकली अपन ये सोचते हैं कि हर चीज जो शॉर्ट होती है वो मतलब कनेक्टेड है, बट वायर्स इन प्रैक्टिकल सिनेरियो वायर्स से भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आप ए और बी को अलग अलग वायर देंगे तो करंट डिवाइड हो जाता है वायर में, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प। ठीक है। Okay, please explain the connection one more time, like why shorting B1 and B2. So I have already repeated, Vivek, B1 and B2 are internally already connected. Connecting them is a good practice. If there are two terminals, अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो है करंट डिवाइड होता है और हमारे वायर्स पे स्ट्रेस कम पड़ता है। In theoretical circuits, the biggest assumption that we make is कि wire has no resistance. ये जो वायर आप यूज कर रहे हैं इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, और अगर आप हाई करंट फ्लो कराते हैं वायर से तो वायर गर्म हो जाता है। तो वायर के गर्म होने का रीजन ही है कि वायर में रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस हैं और इंटरनली शॉर्ट है तो बाहर से भी अगर आप शॉर्ट करते हैं तो बेटर, ठीक है, अगर आप हाई करंट फ्लो कराते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर काफी हाई करंट फ्लो होता है। और नहीं भी करेंगे तो भी इस सिमुलेशन में चल जाएगा, और प्रैक्टिकल में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट सम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस।
Anil Prasad is saying minimum is 2.4 and 4.1. Yes. So आपने जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है उसकी वैल्यू से ये वेरिएशंस आ रहे हैं. अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू से आपको अलग अलग वेरिएशंस मिल सकते हैं. इसमें कोई गलती नहीं है. रेडमाई अगेन आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं की हुई है. अभी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मेरे सेशन को ध्यान से नहीं सुनते हैं. आप अपने सिमुलेशंस में लगे रहते हैं और मेरे सेशन को ध्यान से नहीं सुनते हैं. तो मैंने जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया उसकी वैल्यू चेंज की है. 1 किलो ओम नहीं रखा है. आपने 1 किलो ओम ही रहने दिया होगा. मल्टीमीटर की रेंज डेफिनेटली चेंज होती है. आप मल्टीमीटर पे क्लिक, रेंज क्यों चेंज करना है मल्टीमीटर? रेजिस्टेंस वैल्यू 5 किलो ओम लेके देख लीजिए. 10 किलो ओम भी लिया था मैंने, 5 किलो ओम भी रख दे सकते हैं आप. राहुल आपको थोड़ा सर्किट डिजाइनिंग पे ध्यान देना जरूरी है. आपके ज्यादातर 0 वोल्ट आते हैं. कनेक्शंस आपने ठीक से नहीं किए होंगे. प्लीज डू द राइट कनेक्शंस. तो और कोई डाउट्स हैं और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. ओके, आई थिंक देयर इज अ फीडबैक फॉर्म अगेन शेयर्ड व्हिच इज आल्सो यूज्ड फॉर अटेंडेंस. ठीक है, आपको ये जो डॉक है, ये जो फीडबैक फॉर्म है, ये आपको विद इन हाफ एन आवर फिल करना है. अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं मानी जाएगी. तो सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो लिंक अभी शेयर हुई है आप अपने चैट बॉक्स में देख सकते हैं. वहां जाके अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए और जो है आपको ये हाफ एन आवर में ही फिल करना है. अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं. ओके राहुल कुमार, आपका सिर्फ कनेक्शंस का ही प्रॉब्लम है. आप एक बार शुरू से कनेक्शंस करके देख सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. आप प्लीज ध्यान से देखिए कि A1 A2, A1 को H1 से आपने जोड़ा है कि नहीं, H1 को A2 से जोड़ा है कि नहीं, B1 और B2 शॉर्ट किए कि नहीं, H2 को आपने दिया है कि नहीं, एंड सो ऑन. यस, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग गैस वैल्यू पे अलग अलग वोल्टेज मिलता है. तो इससे अगर हमें कोई बजर ऑन ऑफ करना है तो हमें और एक सर्किट बनाना पड़ेगा ओपैम्प या किसी और की मदद से. तो वो एक सर्किट मैं कराने वाला था, बट आज हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है. तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि LDR को आप किस तरीके से लाइट को LED या बजर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, A1 और A2 और B1 B2 के कनेक्शंस का ही प्रॉब्लम हो सकता है. तो सभी लोग प्लीज इसको देखिए. आई थिंक अभी सबके डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं. सो आई हैंड ओवर टू संजय सर. आज का सेशन हम यही खत्म कर सकते हैं और कल हम इसी टाइम पे 1 बजे अपने रेगुलर टाइम पे कंटिन्यू करेंगे. कल हम लेयर 2 से स्टार्ट करेंगे. लेयर 1 का जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको हम स्टार्ट करेंगे और लेयर 1 का जो भी पेंडिंग है वो कंप्लीट करके लेयर 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग सेशन भी स्टार्ट करेंगे. सो लेयर 2 इज अबाउट प्रोसेसिंग लेयर, कि किस तरीके से आप हार्डवेयर और प्रोसेसर को प्रोग्राम कर सकते हो. So Nilesh Prajapati is saying कि he is not able to fill the feedback form. So I think Sanjay sir can clear your doubt, और जो भी host हैं वो doubt clear कर सकते हैं. So that's it from my side for today. I hand over to the host or Sanjay sir from here. Sanjay sir, are you there? Yeah. Okay. Thank you, Suresh. So Thank they you, can fill the feedback form. Yeah, we can close today.